Praise the Lord. Greetings to you all in Jesus name. हर एक लोग को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. And I want to thank everyone for tonight that we have a blessed day today, and also we are ready for the Word of God, so that whatever God has revealed to us in His revelation, we will always deliver those messages that God had given to us. So I want to encourage everyone today that whenever we come before the Lord, God rejoices us. And the power of the Holy Spirit always comforts us. So that as being child of God, God helps us in His Word of God, so that I might transliterate exactly what the Bible says. So before anything I do, I just want to thank you all, those who are online listening to our program, Jesus King of Kings. And also I would like to welcome those people who are hearing us from their homes online, and from Fiji, from our island of New Zealand, and also those people on the walk, maybe they're doing night shift or somehow they will be listening. I would like to welcome each one of you, so that you all would partake the Word of God, because whenever the Word of God is revealed, it is a blessing to us if we hear and receive the Word of God. Because what God wants us to be yoked with Him, to be always stay with Him and listen to what He in the message He says. So before I start, I'll give the Word of God for the prayer, and then we continue with our message, and some songs we'll be singing as well. So gracious God and our Heavenly Father, I just want to thank you for this day, a wonderful day, Lord. You have blessed us with. The things we had done today was done according to your will, Father. I pray, Lord, that you will bless those online listeners from Fiji, from New Zealand, from Hamilton, from remote parts of the earth, those people who are listening to our words that God has revealed to us. And that's what we will be praying for, so that every man would accept Jesus Christ as their personal Savior and walk according to the will of God, so that they may be found in paradise where God is, we all shall be. So I want to thank you for this time, and we will continue to praise the God Almighty's name in the hymns. We will also be blessed, and also blessed be those who hear online. Thank you for this time. In Jesus' name I pray. Amen. We'll have one number, and then we'll continue with that. Thank you, Jesus. All glory to you, God, Jesus. You are our sovereign God, a God Almighty, the creator of the creation, makers of heavens and earth, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्य है वे जो आपको जो देखे नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह. धन्यवाद देना चाहते प्रभु. Thank you, Jesus. धन्यवाद. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है. एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके
ये जान सके कि हम प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को देते हैं और प्रभु को बढ़ाई करते हैं। और ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद पिता, बहुत सुंदर से बातें हैं। धन्यवाद परमेश्वर। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। सच है कि प्रभु हम लोग के बोझ अपने कांधों पर। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। बहुत सुंदर सा लिरिक्स कहता है कि एक दीप से और सारे दीप को जलाना है। आज हम परमेश्वर में जान चुके हैं, हमें वचन को और लोगों तक बताना है ताकि वे भी बच सके और परमेश्वर के राज के योगी बन सके। थैंक यू जीसस। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। थैंक यू पिता, परमेश्वर आज मुझे प्रचार करने का मौका मिलता है पिता। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, थैंक यू जीसस। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। ये सच है कि प्रभु कहता है, इस भजन को बहुत सुंदर से मीनिंगफुल सॉन्ग है कि एक आग से हम लोग को जलाना है। और जानते हो ना, जब एक आग जब बाल देते हैं, जब हम लोग कुछ चीज में देखते हैं कि एक लकड़ी को जला देते हैं, फिर लकड़ी दूसरों में जलाते हैं। इस तरह से आग ऐसे जलते जाता है। जो अंधकार होता है वो अंधकार ज्योति में बदल जाता है। इसका मतलब हम लोग को परमेश्वर, अगर हम लोग अंधकार में पड़े थे, अभी तक पड़े थे, हम लोग अंधकार से निकल के ज्योति में आ चुके हैं। किस लिए? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इस तरह से किया है। और हम लोग को कहता है कि मैं जीवन का ज्योति हूँ। और परमेश्वर जब हम लोग को ज्योति में लेकर जाता है, हम लोग अंधकार से दूर हो जाते हैं परमेश्वर के राज के लिए। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। एक और वचन है, तो हम आज के वचन के लिए डायरेक्ट हम जाएंगे और प्रभु के यही कुछ परमेश्वर के जो वचन है यही कुछ ताल्लुकात रखता है कि आज के जो बातें मैं कहने वाला हूँ। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु। मतलब
कि एक मनुष्य जो डिसओबीडियंट काम किए हैं, परमेश्वर की बात नहीं सुनने के लिए, उसके जो कुछ भी बताया था कि नहीं करना वो किया, और परमेश्वर से बीच में दीवार हो गया, सिन का दीवार। मतलब if we disobey God, that means we have sinned against God, and once a person sin against God हो जाता है तो उसमें वॉल हो जाता है। लेकिन धन्यवाद, I want to thank God that Jesus Christ incarnated and dwell among men and gave his living sacrifice for the entire world। सभी लोग के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि वो रिश्ता जो टूट गया था वो फिर जोड़ सके और परमेश्वर के राज के हम योगी बन सके। आज मैंने जैसे पहला यूहन्ना के नामक पुस्तक से, पहले फर्स्ट जॉन के पुस्तक से हमने प्रचार किया था लास्ट टाइम, आज भी वहीं से जाता हूँ, बट लेकिन मैं वर्स 12 से जाऊंगा, चैप्टर 2 वर्स 12 से। उसका शीर्षक है द कमांडमेंट फॉर आवर कंडक्ट, फिर डैश मार्क सेपरेशन लिखाने। मतलब कि हम लोग के कमांडमेंट में हम लोग के कंडक्ट को रखा है, हम लोग के हाउ वी टॉक, हाउ वी ओबे टू गॉड, हम लोग परमेश्वर के कैसे पीछे चलते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स is very important as a human being on earth। हम लोग इंसान हैं और हम लोग गलतियां करते हैं, we know that we do sometimes do wrong doing things, and God is always in our support because he gave his living sacrifice to us, and in return we have to just believe in Christ, and he is our savior, so he will pass from death to life, and that life will be everlasting। So verse 12 से मैं आगे जाता हूँ। It says, I am writing to you little children, because your sins have been forgiven, you have his name shaped। मतलब कि जब प्रभु को हम अपने लाइफ को दे देते हैं, if you give our life to God, if you believe in God, so because of God, because of Jesus, we have come out of sinful nature, and God has accepted us and has forgiven us। Forgiven means कि हम लोग को माफ कर दिया, and and when God forgives us, because he took our name into his place, और हम लोग के जो जगह परमेश्वर ने दिया है, no one can give us। हम लोग जानते कि we are born of our parents, हम लोग के पेरेंट्स पास्ट हुए हैं, लेकिन we know they believed in God, so after death our parents, after they died, they may be in paradise because they believed very strongly। And my father was like, he was most of the time he used to write and mark on the Bible, and he was very good Hindi Bible reader. He used to mark on the Bible and whatever, So I have his Bible here, and sometimes I feel like reading in Hindi, so I use his Bible to read। और बहुत अच्छा लगता है कि when I see his marking on the Bible, और जब हम देखते हैं तब I always remember him कि he is no more in us, but I know that one day we will meet। When we will die, we will be together with our parents in paradise। So this is very important for us to know। हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में जब बने हैं तो हम एकताई है, we are oneness, in oneness में आगे बने रहे, so that our God who is in heaven, who sees us, or he who knows us what we're doing, he is our beginning। हम लोग जानता है कि हम लोग के शुरुआत है और हम लोग के अंत भी रहेगा। तो यहाँ पर कहता है कि I am writing to your fathers, to you fathers, जितने fathers लोग हैं, because you know him who has been from the beginning। जैसे हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति के समय में वो लोग शुरुआत से आए हैं, और हम लोग उसी के जरिए हम लोग इस जगत में आए हैं, एंड इसी तरह से लाइफ हम लोग के कंटिन्यू होते जाएंगे। Who has been from the beginning, and I am writing to you young men, because you have overcome the evil। हम लोग जानते हैं कि जो evil चीज से जो evil things है, evil things are against God के will में नहीं रहता है evil thing, because evil things, Satan's job होता है कि वो evil कार्य करना चाहता है हम लोग के लिए। So कहता कि I have written to you children, because you know the Father। We know our Father, the Heavenly Father, who took care of us। That's why he became our sin offering and gave his life for us on behalf of
अस ऑल ह्यूमंस, हम लोग जितने इंसान हैं सभी के लिए उन्होंने दिया है. सो बाइबल कहता है कि as many as received him they are called the children of God. हम लोग परमेश्वर के संतान मनता बने और बन गया. टू डिफरेंट थिंग्स. मनता बने आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, बट बन गया, इफ यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट, दैट मींस यू ऑलरेडी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस. परमेश्वर के धार्मिकता में आप चल पड़े हैं. यू हैव एक्सेप्टेड हिम एज अ पर्सनल सेवियर. सो यहाँ पर आगे कहता है कि आई हैव रिटन टू यू फादर्स बिकॉज यू नो हिम एंड हु हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग. परमेश्वर के हम जानते हैं, हम लोग के पिता है जो उस शुरुआत से पृथ्वी के रचना के समय वहां पर उस समय से परमेश्वर हमारे लोग के साथ में है. एंड व्हाट अ वंडरफुल रिडेम्पटिव प्लान गॉड हैज मेड अस एंड चोजन अस, कि उन्होंने हम लोग जाना है कि when the creation of the time when God Father, our heavenly Father was there, and then for the substitute of sin he gave Jesus Christ, because he crucified himself on the cross of Calvary. And now what happens is now the spirit of the Lord, the one we said the Holy Spirit is indwelling in us. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है. So we should be aware and always be in alert that the Holy Spirit is God, and he's a third person of the Trinity, that who is dwelling in us. That's a very good news that we have received that Holy Spirit in us, and we are walking according to how the Holy Spirit leads us. He says, I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. See, once we receive God, then what happens? God comforts us. परमेश्वर हम लोग को encourage करता है, हम लोग को तसल्ली देता है कि प्रभु के वचन को पढ़ो. When we start to read the word of God, then the word of God हम लोग के अंदर काम करने लगता है. The word of God हम लोग के अंदर अबाइड करने लगता है, हम लोग के अंदर हम लोग के सब कुछ बताने लगता है. And once he abides in you, then you have overcome the evil one. मतलब कि जो evil people लोग अगर रहते हैं उससे या कुछ ऐसा evil thing भी हो जाता है, he overcomes that. वचन के अनुसार कहता है कि nobody is above God. परमेश्वर से ऊंचा कोई नहीं है. इवन evil thing भी नहीं है ऊपर है, because evil thing is under the foot of the Lord. परमेश्वर ने उसको कुचला था और वो उसका हेल में बिगा गया है, क्योंकि वो हारा हुआ है. और आगे कहता है डू नॉट लव द वर्ल्ड. परमेश्वर के वचन कहता है कि दुनिया से बोले तुम ना तो, हम इसके इट्स इन इंग्लिश, आई ट्राई टू रीड इन हिंदी, ट्रांसलिटरेट इन हिंदी. बोले कहता है कि तुम ना तो दुनिया से ना तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम करो. अगर कोई दुनिया से या दुनिया के वस्तुओं से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम रहता है. बहुत सुंदर से बता बोले डू नॉट लव द वर्ल्ड और नॉट द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बट एनीवन हु लव्स द वर्ल्ड, the love of Father is not in him. देखा ना कैसे बताया, बोले तुम ना तो दुनिया से ना तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई दुनिया से या दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं रहता है. दैट मीन्स द लव ऑफ गॉड जो है हम लोग के पास मांगे रहे, पिता का प्रेम जो स्वर्ग के पिता का प्रेम हम लोग के पास मांगे रहे. और हम लोग जानते हैं, हम लोग अपने पिता जो एर्थली पिता रहा हम लोग को उससे भी हम लोग के प्यार करते हैं, बिकॉज ही इज द वन हम लोग के जो ग्रोन अप किया है. एंड द हेवनली फादर हम लोग को प्रोटेक्ट किया है और गाइड किया है. और आज हम लोग जो कुछ भी है प्रचार करते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन लोगों तक पहुंचाते हैं. दिस इज हाउ गॉड हम लोग के मूव करता है. एंड थ्रू वन पर्सन हम लोग के, जैसे बोला थ्रू वन पर्सन सिन केम इनटू द वर्ल्ड, उसी तरह से थ्रू वन पर्सन हम लोग के नॉलेज मिला है, विजडम मिला, अंडरस्टैंडिंग मिला है. दैट इज थ्रू ऑल गॉड, कि परमेश्वर ने हम लोग को दिया है. दैट व्हाट वी आर डूइंग, सो दैट वी टेलिंग अदर पीपल. एंड ऑनलाइन सर्विस तो बहुत अच्छा है, आप लोग घर पे बैठ के सुन सकते हैं. सो दैट द वर्ड ऑफ गॉड goes through your heart, and then you will always practice yourself in the path of righteousness. धार्मिकता के ओर आप बढ़ते चलोगे. तो और आगे कहता है कि for all that is in the world, in a very अच्छे से सुनना, listen very carefully. For all that is in the world, कहता है कि the lust of flesh, मतलब कि दुनिया में जो कुछ है, दुनिया ब्लेंड नहीं बोलता कि दुनिया की चीज में अगर हम फंस जाते हैं, बिकॉज वो हम लोग के शारीरिक अभिलाषा रखते हैं.
शारीरिक अभिलाषा है। ट्राई करता कि इंग्लिश वाला हिंदी करेंगे। सो शारीरिक अभिलाषा का मतलब कि हम लोग के खुशी के खातिर, लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं काम करेंगे जब हम लोग उस चीज में रहेंगे। सो द लस्ट ऑफ द आईज जो आंख जो हम लोग के देखे लस्टफुल थिंग, द बोस्टफुल प्राइड ऑफ लाइफ, क्या करना वो हम लोग के प्राइड दिखाए, जैसे प्राइड पेशेंट जैसे घमंड करे लगे कि हम ये चीज है, हम ये चीज पा सकते, हमें कोई नहीं से कुछ करे, ऑल दोस थिंग्स कम अप। एंड देन द बोस्टफुल प्राइड ऑफ लाइफ इज नॉट फ्रॉम द फादर बट फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई जब बोस्ट करता है कि हमारे पास इतनी गाड़ी है, इतना पैसा है, ये सब है, बताता है, लेकिन वो सब कहता है वो सब चीज छूट जाएगा, सब चीज छूट जाएगा। दुनिया में जब एक पेशेंट के मृत्यु होता है, कुछ नहीं जाता लेकर, गड्ढा है जो बरी करते हैं हम लोग, जहाँ कितना 8 फीट के गड्ढा होता है नीचे, और फिर उसके जोन साइज के हैं उतना बड़ा करते हैं। मैंने फ्यूनरल किया फिजी में भी, तो हम लोग को हमें ये जानकारी है कि एक पेशेंट जब वो जाता है सिर्फ सफेद चादर को लपेट कर और उसको छोड़ देते हैं। कभी कभी कॉफिन बॉक्स भी नीचे लवा कर देते हैं और साइड में रख देते हैं ढक्कन को। कोई बोलता है कि कवा करो, कोई बोलता नहीं करो, डिपेंड्स ऑन व्हाट, बट द पेशेंट इज डेड द टाइम द मोमेंट दैट ही वाज सपोज्ड टू एक्ट। इफ ही हैज नॉट एक्ट, अगर प्रभु को नहीं अपनाया है, अगर वैसे मर गया है, वैसे पास हो गया है, दैट मींस ही विल नॉट बी इन पैराडाइज। बट अ पर्सन हु बिलीव्ड इन गॉड एंड बिलीव दैट ही इज आवर सेवियर, ही रिडीम्ड अस, he atoned for us, सब कुछ एक्सेप्ट हम लोग किया है, that's where we will be। हम लोग के खाली शरीर because he is made out of dust, तो हम लोग डस्ट में चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हम लोग को अपनाया है वो हम लोग को परमेश्वर के राज में चला जाएगा। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है, we are visitors in this world। हम सब मांगे जाने, ये बात सबकी मांगे जाने कि हम बोलते हमारे ये है, हमारा वो है, हमारा कुछ नहीं है। हम लोग एक मेहमान है, जितने दिन हमारे सांस चलता है उतने दिन के हम मेहमान हैं परमेश्वर के। अगर हम लोग पीछे चलते हैं, परमेश्वर अगर हमारी मृत्यु हो गया है तो हम परमेश्वर के राज में चल देंगे। अगर हम परमेश्वर पर नहीं विश्वास करा है तो हम परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फॉर ऑल दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड आर जस्ट द लस्ट ऑफ फ्लैश, मतलब कि हम लोग के शारीरिक अभिलाषा के ऊपर वो हम लोग को लालचीपन दिखाता है। और हम लोग का लस्ट ऑफ आइज जो हम लोग बोस्ट करते हैं, और प्राइड ऑफ आवर लाइफ, ये लाइफ पता नहीं कितने दिन की हम लोग नहीं जानते। वंस आवर हम लोग का ब्रेथ रुका, वी विल बी डाई, वी विल फिनिश, हम लोग चल देंगे। बट कहता है कि नॉट फ्रॉम द फादर बट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम लोग के पिता जो हम लोग एक्सेप्ट करी से we believed and father हम लोग एक्सेप्ट किया है, so we will be with the father। but अगर हम लोग नहीं किया है, सो हम लोग वर्ल्ड में जब मर जाएंगे, हम लोग किसी को अपनाया नहीं है, प्रभु को नहीं अपनाया है, दैट मीन्स हम लोग दुनिया की चीज में रह कर और वहीं से हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को कुछ नहीं हासिल होगा। बोले द वर्ल्ड इज पासिंग अवे। हम लोग जानते हैं कि दुनिया अब आस्ते आस्ते बिगड़ता है, परमेश्वर के कोई हम लोग आस्ते आस्ते दूर जाता है। पता नहीं कब क्या होगा। अभी लड़ाई चल रहा है, वायरस आ रहा है और देश देश की लड़ाई करेंगे। बाइबल कहता है कि अंतिम दिन के समय इसे सब होगा। तो हम लोग लस्ट जो हम लोग के है, बट द वन हु डज द विल ऑफ गॉड लिव्स फॉरएवर। क्या हम लोग के काम है कि हम लोग प्रभु के हम लोग जान चुके हैं, परमेश्वर के हम लोग करीब है, परमेश्वर के हम लोग धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के नाम के जो बाइबल लिखा हुआ है हम लोग उसको पढ़ते हैं, फिर ट्रांसलिटरेट करते हैं, लोगों को बतलाते हैं और लोग भी सुनते हैं अपने घर पर बैठ के। जैसे बहुत इतना जुलूम से साधन हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन सर्विस करते हैं। और हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जाना कि हम लोग की दुनिया जो है वो आस्ते आस्ते हम लोग से दूर जाता है। और परमेश्वर दूर जाता मतलब कौन चीज होता है कि हम लोग के जो उम्र जाता है, एज जाता है, और हम लोग एक रकम के वो रकम से नहीं रह गए। जैसे साल जाता है तो नेक्स्ट ईयर आता है, तो इसी तरह से हम लोग एज भी 1 ईयर ऐसे चलते रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर जाता है ऐसे। तो व्हाट वी नीड टू डू कि हम लोग अपने आप को योग करें विद गॉड, परमेश्वर के साथ में योग करें। योग मतलब कि ऐसे प्रभु जैसे नहीं दो बैल को नाचते हैं तो दोनों जन साथ चलते, इसी तरह से हम परमेश्वर के साथ में उस तरह से रिश्ता रखें कि गॉड ऑलवेज हम लोग को प्रोटेक्ट करे, गाइड करे, हेल्प करे। तो हम लोग के क्या है, यहाँ पर कहता है कि द क्रीड ऑफ आवर कॉन्डक्ट ऑफ एफर्मेशन की हम लोग के क्या करना है। चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट आवर
as just you have heard that Antichrist is coming. Antichrist मतलब कौन सी है कि हम लोग के प्रभु के विरोधी करने वाले सब लोग रहेंगे. मतलब जब एंटीक्राइस्ट होगा तो बहुत मुसीबत आएगा. वो लोग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी रहेंगी, प्रभु के वो लोग नहीं मानेंगे, प्रभु जो हम लोग को बताया उस सब से वो लोग ऑपोजिट में रहेंगे. तो इससे क्या होगा बोले कहता कि इवन नाउ मेनी एंटीक्राइस्ट हैव अपीयर्ड ऑलरेडी. यहाँ पे बाइबल कहता है कि उन समय में कि कई एंटीक्राइस्ट ऐसे आ गए थे, मतलब अभी है. तो अभी सोचो उस समय से अभी कितना हो गए होंगे. तो दे डोंट बिलीव इन गॉड. वो लोग परमेश्वर पे नहीं बिलीव करते. क्यों नहीं बिलीव करते हैं? कि वो लोग दुनियादारी की चीज में, सम पीपल they don't even trust in God. वो लोग चाहते कि वो लोग कहते हैं कि कोई गॉड नहीं है. बट सिंस हम लोग जब एक्सेप्ट किया है, and God had blessed us with everything, and God हम लोग को ये assurance दिया है कि one day he will come back again. प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा वापस आएगा. वो कहता है कि वो बादलों से सवार होकर आएगा और हम लोग उस दिन को इंतजार करते हैं कि अगर हमारा मृत्यु नहीं हुआ, इफ आई एम अलाइव, तो हम उसको देखेंगे. एक भजन है, बादलों से होकर सवार होकर आएगा. हाँ, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूत के साथ प्रभु आता है. ऐसे कुछ है गीत. तो प्रभु बादलों के में से आएगा और हम जानेंगे कि हम प्रभु को देखेंगे. और मे बी शायद पंख होगा उसका, हिज सेकंड कमिंग. तो अगर वो आएगा तो हम बहुत खुशी होंगे और प्रभु को उसके साथ में उठा लिए जाएंगे. तो बहुत अच्छा बात है कि वहां जा रहेगा, बिकॉज वहां पर जब रहेगा सब अच्छा ही अच्छा रहेगा और हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे. तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि जब से हमने प्रभु को जाना है, तब से हमारा जब से जीवन बदला है, तो हम फिर पीछे मुड़कर नहीं तका. बोले जो मनुष्य, बोले बाइबल बोलता है कि जो मनुष्य हल पकड़ कर, जो फुलावा जो ना खेत जोते फुलावा, जो बोले जो मनुष्य हल पकड़ के पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे राज में चलने का योग नहीं है. इसके मतलब कि परमेश्वर के जब हम अपनाया है तो उसके पीछे चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, क्योंकि पीछे देखने से तुम्हारा आगे का रास्ता बिगड़ सकता है. तो यहाँ पर कहता है कि they went out from us but they were not really for us. ख्याल करना, जो लोग एंटीक्राइस्ट में ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब कि परमेश्वर के विरोधी में हो जाते हैं, तो बताए बोले they went out for us from us, मतलब कि हम लोग के साथ से निकल कर गए हैं, और but they were not really for us, मतलब कि हम लोग के साथ में नहीं, और हम लोग के साथ में नहीं रहे, इसीलिए वो चले गए. बिकॉज वो हम जैसे प्रभु के नहीं अपनाने चाहते थे, लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते थे कि वे अपना लिए हैं. For if they had been of us, they would have remained with us. देखा कैसे होता है इसे? बोले अगर हम लोग के रहे होते तो हम लोग के साथ में ही रहते, लेकिन but they went out so that they would be shown that they all are not of us. वही बात उन्होंने कहा कि वो लोग इस तरह से चले गए कि हमको बताए हैं, ये हम लोग के याद दिलाए हैं या दिखलाए हैं कि हम लोग में वो नहीं थे. लेकिन वो दिन आएगा, वो समय आएगा जब वो अपने आप को पछतावा करेंगे, जो लोग प्रभु के छोड़ के जो चले गए हैं. प्रभु उसी समय वो कहेगा कि मैं एक कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना. प्रभु हम लोग को पहचानता है, हम लोग की आवाज से पहचानेगा, हम लोग के शक्ल से जानेगा, लेकिन परमेश्वर हम लोग को बाइबल कहता है कि वो कभी छोड़ेगा नहीं, न कभी त्यागेगा. वो इसका एश्योरेंस है. सो बोले आई हैव नॉट रिटन टू यू बिकॉज यू डू नॉट नो द ट्रूथ, बट बिकॉज यू नो इट, एंड बिकॉज यू लाई, बिकॉज नो लाई इज ऑफ द ट्रूथ. बोले हम लोग जो लोग मन फिरा कर चले गए, तो वे लोग जानते थे, बिकॉज नो लाई इज ऑफ द ट्रूथ. जो अगर झूठ बोलता है तो उस सच्चाई पे नहीं चलता है. हु इज अ लायर? कौन झूठ बोलता है? बट द वन हु डिनाइज दैट जीसस इज क्राइस्ट, वो है जो प्रभु यीशु मसीह की डिनाई करता है
कि जीसस क्राइस्ट है. दिस इज द एंटी क्राइस्ट, द वन हु डिनाइज द फादर एंड द सन. क्या करना, हम लोग के जिस तरह से रिडेम्पटिव प्लान गॉड बनाया, फादर सन एंड द होली स्पिरिट, हम लोग तीनों पे जैसे ट्रिनिटी हम बोलते हैं कि फादर सन एंड द होली स्पिरिट, दे डिड देयर थ्री ऑफिसेस है लोग कि पिता द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, सन द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमैनिटी, हम लोग के और परमेश्वर के बीच का जो रिश्ता है, जो प्रभु यीशु मसीह, एंड द होली स्पिरिट दैट गॉड हैज गिवन दैट गिफ्ट, the gift that is indwelling in us, हम लोग के अंदर जो रहता है. तो हम लोग always must be aware that wherever whatever we do, our God in spirit knows us, what we're doing, and how we are we have that relationship with God. So हम लोग के one thing हम लोग के इसमें से इतना चीज हम लोग को समझने को मिलता है कि हम लोग झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा. Who is a liar? इला सुनना. Who is a liar? But the one who denies that Jesus is Christ. जो डिनाई करता है वही झूठ बोलता है ना. Because he knows very well. हम लोग सब जानता है प्रभु यीशु मसीह क्या क्या है, सब कुछ पढ़ा है, बाइबल सब चीज बताता है. This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son. तो we should be aware कि God हम लोग के क्या करना कहता है और हम लोग के क्या चाहता है. अगर परमेश्वर हम लोग के जो कुछ भी कहता है वो चीज जरूर से होता है. Whoever denies the son did not have the father. जो बेटा को दूर कर दिया, उसके पास पिता तो है ही नहीं. The one who confesses the son has the father also, because through son everything is possible. प्रभु यीशु मसीह ने he was the one who crucified himself on behalf of we people. हम लोग के खातिर उन्होंने अपने आप को दिया. So as for you, let that abide in you which is you had from the beginning. हम लोग जब शुरुआत से भी जैसे हम लोग सुनते आया, पहले बहुत पहले से ये बातें सुनते आया है कि प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है. They are one but three offices. मैं हमेशा कहता है कि if what you had from the beginning abides in you, मतलब कि जो चीज तुम शुरुआत में सुना है अभी तक तुम्हारे अंदर है और तुम्हें उत्तेजित करता है, तुम्हें वही मार्ग पे चलाता है, will abide in son and in the father. मतलब कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ में चलते हैं, तो इसमें कोई रकम की प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द प्रॉमिस विच he himself, he जो वर्ड लिखा गया कैपिटल H and himself is also capital H, so which means he talks about he as God and himself as God made to us eternal life. कि परमेश्वर ने हम लोग को वो जीवन दिया जो इटर्नल है, हम लोग के अंदर है परमेश्वर के आत्मा, और वो हम लोग के हमेशा के जीवन दिया. इटर्नल लाइफ इज एवरलास्टिंग लाइफ. सो दिस थिंग्स आई हैव रिटन टू यू कंसर्निंग दोज हु आर ट्राइंग टू डिसीव यू. डिसीव यू मीन्स कि जो लोग तुम जानते हैं कि तुम प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई रकम से हम लोग को खींच कर और फिर अंधकार की ओर ले चल दे. तो ऐसे कभी नहीं होता है, बिकॉज गॉड हैज गिवन अस नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग. प्रभु हम लोग के तीन चीज दिया है, ज्ञान बुद्धि समझ, ये तीन चीज दिया है, और हम लोग तीन चीज को हम लोग वाइजली यूज कर सके ताकि परमेश्वर जो कुछ भी कहा है हम लोग के अंदर बुद्धि के अंदर जाए और हम लोग उसी की तरह के फॉलो कर सके. as for you, the anointing which you have received from him is capital H, means from God, abides in you, and you have no need for anyone to teach you, but as his anointing teaches you. जैसे तुम्हें परमेश्वर का anointing तुम्हें बताता है about all things, that the true is not a lie. अगर तुम सच्चा बात पे चलता है तो झूठ नहीं है वो. just as it has taught you, you abide in him. कि जैसे उन्होंने बताया है हम उसी तरह से उसमें होकर चले, परमेश्वर में होकर चले. प्रभु हम लोग के जो अश्योरेंस दिया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का अश्योरेंस कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी गलत नहीं हो सकता है. काहे नहीं हो सकता है? क्योंकि परमेश्वर हम लोग को इस लाइफ को बनाया है और हम परमेश्वर में आगे इसी तरह से बढ़ते हैं. सो मैं एक छोटा
पैराग्राफ है, मैं उसको कंप्लीट करके एंड देन फॉर नेक्स्ट टाइम आई विल गो फॉर द अदर वन. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेलोशिप, जैसे फेलोशिप हम करते हैं उसमें क्या होता है इन रिलेशन टू आवर प्रोस्पेक्ट प्यूरिटी, कि हम लोग के कितना हम लोग परमेश्वर में प्यूरिटी होकर सब कुछ करते हैं. नाउ लिटिल चिल्ड्रन अबाइड इन हिम सो दैट व्हेन ही अपीयर्स, मान लो परमेश्वर जब आएगा, वी मे हैव कॉन्फिडेंस, कि हम लोग पास वो कॉन्फिडेंट रहेगा, और नॉट टू श्रिंक अवे फ्रॉम हिम इन शेम ऑफ हिज कमिंग. ख्याल करना जब परमेश्वर आएगा तो हम लोग के शर्मिंदगी की सामना नहीं करना पड़े, लेकिन परमेश्वर जब आएगा तो हम लोग को अपने सीने तान के खड़ा होकर कि प्रभु आपको धन्यवाद होजाना हम लोग बोल के, या ग्लोरी टू गॉड बोल के हम लोग उसको स्वागत करेंगे. एंड इफ यू नो दैट ही इज राइचस, यू नो दैट एवरीवन also who practices righteousness is born of him. ख्याल करना, हम जैसे मैंने हमेशा righteousness के बारे में बात करता है कि हम लोग अगर धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो जैसे वो आता है तो हमें जानते हैं कि वो धर्मी का परमेश्वर है, और उसी तरह से वो पैदा हुआ है और हम भी उसी के जरिए पैदा हुआ है. आज हम धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं तो परमेश्वर के हम करीब पा चुके हैं, परमेश्वर में हम बने रहेंगे. सो सी हाउ ग्रेट द लव ऑफ द फादर has bestowed on us. हम लोग किस तरह से परमेश्वर हम लोग को अपने पे निछावर किया है, that we would be called the children of God. ख्याल करना, हम लोग के परमेश्वर के संतान जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं हम लोग के बोलने में, तो हम लोग के कितना खुशी मिलता है कि हम लोग कहते हैं कि we are the children of God, और सच we are, हम लोग सच्चे के भी हम लोग है. For this reason the world does not know us because he did not know him. क्योंकि वर्ल्ड नहीं जाने हम लोग को, काहे नहीं जाने, बिकॉज पूरा वर्ल्ड जो है वो लोग प्रभु के नहीं जाने, इसीलिए हम लोग के भी नहीं जानते. Beloved, now we are children of God. हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं. It is not appeared yet, but we will be. एक समय आएगा कि हम लोग देखेंगे, प्रभु जब आएगा बादलों पे सवार होकर, तो हम लोग के साथ में हम लोग के उठा लिए जाएंगे. So we know that he appears and we will be like him because we will see him just as he is. जैसे कि तैसे वो आएगा हम लोग उसको देखेंगे. And everyone who has hope, ख्याल करना, ये कौन सी बताता है कि everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. क्या करना, जितने लोग उसके ऊपर आशा रखे हैं, अपने आंख को फिक्स करके रखे हैं, अपने आप को उसके ऊपर प्यूरिफाई हिमसेल्फ करे हैं अपने आप को, जस्ट एज ही इज प्योर. जैसे परमेश्वर पवित्र है उसी तरह से हम लोग भी उस पवित्रता में उसके साथ में रहेंगे. तो मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, और परमेश्वर के जो वचन आया है बहुत सुंदर से आया है. वो समय के बाद कह रहा है परमेश्वर कि जब परमेश्वर दोबारा आएगा और हम किस तरह से उठा लिए जाएंगे. लेकिन हाँ, अगर हमारे पास जो विश्वास नहीं है, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग मांगे, हम लोग के रास्ता मांगे कि परमेश्वर में प्यूरिटी में चले, कि परमेश्वर जैसे पवित्र परमेश्वर, इसी तरह से हम लोग पवित्रता की ओर चले, और परमेश्वर हमेशा हम लोग को साथ देगा, हम लोग की अगुवाई करेगा, हमेशा हम लोग के एनकरेज करेगा. अगर हम लोग परमेश्वर के दूर चल देते हैं तो हमारा और परमेश्वर का बीच में कोई ईवल चीज घुस जाता है, और फिर हम लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे. तो हमेशा के लिए ख्याल करना कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है हम मनुष्य के लिए किया है. God so loved the world, बाइबल कहता है, God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया कि जो कोई से विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो हम लोग को वो जीवन अभी तो मिल गया है, हम लोग को जीवन मिल गया है, लेकिन हम लोग मांगे कि परमेश्वर में इसी तरह स्थिर रहे, परमेश्वर में जाते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए. हम लोग के लिए दोनों गेन है. इफ वी आर अलाइव इट्स गेन, इफ यू आर डेड स्टिल गेन. क्योंकि हम लोग जिए चाहे मरे, प्रभु में हम लोग के आनंद जीवन मिल चुका है. दिस इज द एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन गॉड हैज गिवन अस, एंड दैट्स व्हाट वी रेस्पेक्ट व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस. सो हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर देखेंगे तो हमेशा क्या करना, इन रिलेशन टू आवर पोजीशन, राइचियसनेस एंड ब्रदरली लव. हम लोग ये टॉपिक पे और वहां से फिर आगे जाएंगे. तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग
आज ऑनलाइन को सुने हैं, मैं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू preach together with the teaching so that you can understand and what God wants from you। और परमेश्वर जो कुछ भी हमसे कहता है वो कर रहेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, you won't go in vain, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर में जब आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं एंटी क्राइस्ट में कुछ भी होगा, अगर हम लोग को मारेंगे भी, हम लोग मर भी जाएंगे तो भी कोई हानि नहीं होगा, बिकॉज आवर सोल विल रेस्ट विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ में रहेगा। तो धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी को। और हमेशा की तरह जैसे परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करता है, हमेशा जो कुछ भी, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन मैं पढ़ना के शुरू करता हूँ उससे मेरा माइंड ब्लैंक रहता है, बट जब व्हेन आई स्टार्ट प्रीचिंग एंड देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू कम, परमेश्वर इस तरह से भरते जाता है और मैं इसी तरह से कंटिन्यू करते जाता हूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग आज सुने हैं, सभी को मैं ये जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर लिसनिंग, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिट फील्ड, परमेश्वर के आत्मा उस पर मंडराता है, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ है, बिकॉज द होली स्पिरिट जो है वो सब इसको इंस्पिरेशन दिया है। एंड वट एवर वेन एवर वी रीड दिस, हम लोग के ऑलवेज ब्लेस होता है, हम लोग की लाइफ ब्लेस होता है, और हम लोग के जो नॉलेज विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम परमेश्वर में ऑलवेज अपने आप को बांध कर रखें, अपने आप को कमिटेड रखें, सो दैट नथिंग कैन बी। जैसे छोटा गैप में देखता ना, कभी कभी हम लोग घर में रेट्स आ जाते, छोटा रेट्स भी आया घूमते, तो अगर उतना छोटा गैप में मिलता, कोई स्मॉल होल रहता, रेट उसमें से हल जाता है। तो उसी तरह से हम लोग के अंदर में कोई भी ऐसे लेजीपन आ जाता है अगर, कि हम लोग परमेश्वर के बोलता अच्छा आज प्रेयर नहीं करेगा, आज परमेश्वर के वचन नहीं सुनेगा, सो दैट इज वेयर द सैटन ट्राइज टू एंटर। और वन सैटन अपना गैप बना लेता है तो फिर हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जाता है। तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने परमेश्वर का जो वचन है वो सुना है, परमेश्वर के जो बढ़ाई किया गया है गीत के द्वारा, उससे भी हम लोग परमेश्वर पर प्रसन्न होते हैं। और हमेशा की तरह आप लोग हमेशा प्रभु के में बने रहना, क्योंकि प्रभु से और कुछ हम लोग के जो ब्लेसिंग मिला है, जितना कुछ वो हम लोग को इसी तरह से मिलते रहेगा। तो हम लोग परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो और हमेशा प्रभु में बनते रहो। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ कहना है तुम्हें? और एक सॉन्ग है, अच्छा ठीक, तो एक सॉन्ग कर सुनने के बाद में फिर खत्म करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में ओके, बस थोड़े से सुना गया, तो मैं प्रेयर के बाद में फिर हम लोग फिर डिसमिस हो जाएंगे। तो लेट्स ऑल प्रे। दयालु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपके सन्मुख आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपके जो वचन है पिता, वो दो धारी तलवार से भी चोख है प्रभु। और वो परमेश्वर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो खुद हम लोग को काटता है, ताकि परमेश्वर हम लोग पिता परमेश्वर और करीब आप आ सके। और परमेश्वर जितने लोग आज ऑनलाइन सुने हैं पिता परमेश्वर, यही जाने कि दुनिया की चीज में कितनों फंसे पिता, लेकिन हमारे दुनिया की चीज में पिता परमेश्वर कोई जीवन नहीं है, लेकिन जो जीवन परमेश्वर ने दिया है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस जीवन पिता परमेश्वर हमेशा का जीवन है, जो हमेशा हम आपके राज में रहेंगे प्रभु। तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आज वचन जिस तरह से लाया गया, आपके आशीष हो पिता परमेश्वर, ये हर एक शब्द जो लाया गया परमेश्वर आशीष हो, ताकि प्रभु हम आप में आगे बढ़ते जाए और प्रभु आप में प्रोटेक्शन हम लोग को मिलती जाए इसी तरह से, ताकि परमेश्वर जितने लोग सुने हैं पिता सभी परमेश्वर में लवलीन होकर और पिता परमेश्वर आत्मिक तौर से होकर पिता परमेश्वर उसके गुण गाते रहे और परमेश्वर में बढ़ते जाए। धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए, और जितने लोग ऑनलाइन सभी को सुने हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू।